Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College, अजमेर। हम पढ़ रहे थे मेथड्स यूज्ड इन निमेटोलॉजी। ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ निमेटोड अटैक, galling symptoms from the southern root knot nematode on soybean. Here the roots are affected by the nematode attack. This is one of the symptom. This is another figure showing endoparasitic lens nematode. रेड कलर से हम देख पा रहे हैं nematodes को. They are feeding the root segments. This is ectoparasitic stunt nematode feeding on a corn root. Now we come to the topic again. Methods used in nematology, part 2. Now we come to the sampling process. The aim of sampling is to estimate the nematode number or biomass in a particular field or plot as accurately as possible. The level of inaccuracy of this process is called sampling error, which can be expressed in terms of variance and standard deviation. हम जो सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करने का हमारा मेन एम है कि हम निमेटोड का नंबर एक्यूरेटली ट्रेस आउट कर सकें कि कितने निमेटोड्स इस फील्ड के अंदर प्रेजेंट हैं. नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाइल सैम्पलिंग द सॉइल निमेटोड्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निमेटोड्स इज नॉट एट रैंडम बट क्लस्टर्ड. Many physical, biological, and agronomical factors may play a role in nematode distribution patterns. Depending on the root growth, soil texture, and nematode species, nematodes can be found up to a few meters of depth in the soil. How the root is growing, how the soil is, what is the texture of the soil, which species of nematode is growing. So depending on these factors, nematodes are found up to a few meters of depth in the soil. Generally, the major share of nematodes can be found in the upper 0 to 25 centimeter of the soil. That is in the area where the bulk of plant roots are located. तो soil के अंदर अधिकतर nematodes मिल सकते हैं हमको ऊपर के 0 to 25 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल. ये वो एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो लोकेटेड होती हैं. बिकॉज दीज निमेटोड्स दे अटैक द रूट, तो मैक्सिमम जो निमेटोड्स होते हैं वो 0 to 25 सेंटीमीटर सॉइल डेप्थ तक पाए जाते हैं. इसलिए फॉर दैट रीज़न द सैम्पलिंग डेप्थ on cultivated land is mostly the furrow depth. इसलिए furrow depth को ही काम में लेते हैं निमेटोड की स्टडी करने के लिए. और जब हम ट्री का सैंपल देखते हैं, ट्री सैम्पलिंग को हम देखते हैं, तो वो ग्रेटर डेप्थ तक की जाती है क्योंकि ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो डीप सिटेड होती है रूट्स. इसलिए इन केस ऑफ ट्रीज द सैम्पलिंग इज डन एट ग्रेटर डेप्थ्स. अब निमेटोड की सैम्पलिंग करने के लिए उसकी लाइफ साइकिल की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. नॉलेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द निमेटोड्स टू बी सैम्पल्ड इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स. इन जनरल द ड्रायर एंड वार्मर द क्लाइमेट द फ्यूअर निमेटोड्स आर प्रेजेंट. जितना ज़्यादा ड्राई होगा क्लाइमेट और जितनी ज़्यादा वार्म होएगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होएगी, उतने ही कम निमेटोड्स पाए जाएंगे. ये हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि मॉइस्ट जो होती है सॉइल, जब फील्ड की जो
सॉइल होती है वो मॉइस्ट होती है, तो उस समय हमको मैक्सिमम नेमाटोड की पॉपुलेशंस हम कलेक्ट कर सकते हैं या मिल सकती हैं. तो ऑल्सो द टाइप ऑफ क्रॉप एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस दे इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेवलपमेंट. नाउ वी कम टू द सैम्पलिंग टूल्स, कि क्या हम औजार या टूल्स काम में लेते हैं सैम्पलिंग करने के लिए. Sampling of the nematodes can be carried out using a variety of tools, ranging from a cigar tin or an ordinary spade to special soil samplers or augers. Yeah, augers. You can pronounce it anyway. The type of sampling device depends on the purpose of sampling. कि किस पर्पस से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं. However, the diameter of the soil sampler or auger should not be too small. बहुत कम डायमीटर वाला नहीं होना चाहिए. अगर कम डायमीटर वाला होगा तो it will cause harm to the nematodes. तो the diameter of the soil sampler or auger या auger should not be too small, since too much friction harms the nematodes. A 17 millimeter auger is generally used. अधिकतर सैम्पलिंग करने के लिए 17 मिलीमीटर का ऑगर काम में लिया जाता है. The soil sampler must be inserted at a straight angle. सबसे पहले जो भी सॉइल सैम्पलर हम काम में लेते हैं उसको सॉइल में हमको सीधे स्ट्रेट एंगल के अंदर सॉइल में इंसर्ट करना है और फिर क्वार्टर और हाफ टर्न देना है बिफोर रिट्रैक्टिंग. बाहर निकालने से पहले क्वार्टर और या हाफ टर्न देना है, सो दैट द सॉइल विल स्टिक टू द ट्यूब. इक्विपमेंट शुड बी क्लीन टू अवॉइड कंटेमिनेशन फ्रॉम द प्रीवियस सैम्पलिंग. जो भी हम इक्विपमेंट्स या टूल्स काम में लेते हैं उनको हमको साफ यूज़ में लेना है. दे शुड बी क्लीन टू अवॉइड कंटेमिनेशन फ्रॉम द प्रीवियस सैम्पलिंग. अगर हमने पहले सैम्पलिंग कर रखी है उन्हीं टूल्स से, तो उसके बाद में जब भी हम काम में लें हमको उनको साफ करना चाहिए ताकि प्रीवियस सैम्पलिंग का कुछ भी एरर हमारी प्रेजेंट सैम्पलिंग में नहीं आए. तो इक्विपमेंट शुड बी क्लीन टू अवॉइड कंटेमिनेशन फ्रॉम द प्रीवियस सैम्पलिंग एंड टू प्रिवेंट अ सेकेंड डिग्री एरर. अपार्ट फ्रॉम द डिस्क्राइब्ड सैम्पलिंग टूल्स, स्केच पेपर एंड अ पेंसिल आर यूज्ड टू रिकॉर्ड अदर डिटेल्स. टूल्स तो जब भी हम सैम्पलिंग करें तो हमारे पास टूल्स तो होने ही चाहिए. टूल्स के अलावा एक स्केच पेपर होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए, ताकि हम और जो डिटेल्स हैं कि कंडीशन कैसी है क्रॉप की, वेदर कैसी है, उसको हम नोट कर पाएँ. ये आप देख सकते हैं, दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड फॉर द सैम्पलिंग ऑफ नेमाटोड्स. ये कुछ टूल्स हैं, स्पेड हैं, ऑगर्स हैं, नीडल है, जिनको हम नेमाटोड की सैम्पलिंग करने के लिए काम में लेते हैं. These are also soil sampling tubes. ये tubes हैं, soil sampling tubes which are used for sampling of nematodes. So students, this is all for today. We'll continue with this topic in our next lecture. Okay, thank you.